Good evening to you guys. Very good evening to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. Giriraj, very good evening to you. Nancy, very good evening to you. Sneha, very good evening to you. Shivani, Jai Shri Krishna to you. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. Engineer Ramana, very good evening to you. Jyoti, very good evening to you. Lakshmi, very good evening to you. हेमू प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे मेरे भाई. भूमिका, very good evening to you. Very good evening to all the people, those who are connecting here. Very good evening to you guys. Very good evening to everyone. विद्याधर जी नमस्कार आपको. सभी को नमस्कार. सभी को गुड इवनिंग. हम अगले चंद मिनट का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही हमारे सभी छात्र छात्राएं जो रेगुलरली हमारे साथ सेशन का हिस्सा होते हैं, once they are going to be here, I would be starting the session and we will be having discussion over 60 important MCQs from the Madhya Pradesh. They are going to be very important, so please be very clear that you can be there into the session. साक्षी, दिव्यांश, very good evening to you, very good evening to everyone. आशुतोष जी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें मेरे भाई. दिव्यांश, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश. धनंजय, very good evening to you. मुस्कान, very good evening to you. अमृता जी, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश. निशांत, very good evening to you. प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें आप. स्नेहा, पूनम, very good evening to you guys, very good evening to everyone. सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग. हम अगले चंद मिनट का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वही छात्र छात्राएं जो हमारे साथ सेशन का हिस्सा होते हैं, once they are going to be here, मैं मेरे सेशन की शुरुआत करूंगा. नम्रता, very good evening to you. सोनाली, very good evening to you. Nancy, very good evening to you. Ritu जी, very good evening to you. Very good evening to all the people, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good evening. Till the time all the people are going to be here, you guys can hear me out over India's largest learning platform. When we look after the classes of the India's largest learning platform, there are two kinds of classes which are available. The free classes are available as well as the plus classes are available. And when we want to look after the characteristics of both these classes, कि ये free classes जो हैं, इन free classes पर, special classes पर हमारे पास लिए क्या available है, प्लस क्लासेस पर हमारे लिए क्या अवेलेबल है. तो फ्री क्लासेस के कंटेक्स्ट में आपको ये समझना होगा कि यहाँ सेशंस जो है वो लिमिटेड होते हैं, यहाँ सेशंस जो है वो ओकेजनल होते हैं, यहाँ पीडीएफ्स जो है वो ओकेजनल होती हैं. बट बिलीव मी, जो कुछ भी यहाँ डिलीवर किया जाता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो प्रयास करिए कि जो भी सेशंस स्पेशल क्लासेस पर डिलीवर करे जा रहे हैं, आप इन सभी सेशंस का हिस्सा हो सकें. एट द सेम टाइम जब आप प्लस क्लासेस की बात करते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन की जरूरत है. आप एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे आप एमपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई, एमपी पुलिस सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, एनी काइंड ऑफ एग्जाम व्हिच यू आर लुकिंग आफ्टर इनटू द मध्य प्रदेश, you can complete the syllabus by the medium of the batch course. You can practice by the medium of the unlimited mock test. You can revise by the medium of the unlimited PDFs as well as the dedicated doc-linked sessions are also available. तो उनके माध्यम से आप अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं. ये प्लस के एडवांटेज हैं. और अगर आप मेरे नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज की बात करेंगे अनअकैडमी के, तो वह है किसी भी समय पर, किसी भी जगह पर लाइव सेशंस में, रिकॉर्डेड सेशंस में कनेक्ट करना अपनी सुविधा के अनुसार. You are having opportunity to learn from the best educator as well as the influencer of a particular category. You can get access to the best multiple correspondence courses. इसका एक अपना मतलब है कि हर महीने में कुछ बैच कोर्सेज जो हैं वो रिलीज करे जाते हैं. इन बैच कोर्सेज के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं, अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं. मेगा फाउंडेशन बैच एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2022-23 रिलीज किया जा रहा है. 16 मार्च से यह बैच कोर्स रिलीज किया जाएगा. ये एडिकेटेड्स यहाँ आपकी स्क्रीन पर हैं. इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत कर सकते हैं. हाँ, इसमें मैं नहीं हूँ मेरे भाई, मेरे पास जो अलॉटेड आवर्स है वो ऑलरेडी क्या है, शेड्यूल्ड हैं अभी. तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि मार्च में मेरे बैचेस नहीं हैं. अपकमिंग बैचेस मार्च में नजर नहीं आएंगे आपको सिर्फ मेरे जो लाइव बैचेस हैं वो ऑलरेडी बहुत चल रहे हैं. तो इस वजह से अप्रैल में 6 अप्रैल से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूनिट 10 पर. तो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे. सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग. पूजा, मुस्कान, मनीषा जी, उपेंद्र, मानसी, अनुराधा, वेरी गुड इवनिंग टू यू. ऋतिक, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे. भारती, वेरी गुड इवनिंग टू यू. जय श्री राम. सत्यम जी, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग. यह मेरे बारे में है. ऐसे छात्र छात्राएं जो मेरे साथ पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं. Do visit the profile. It's Kuldeep Dubey. And be very clear when you are going to search, when you are going to look after the profile, do check complete course section, because when you will be looking after complete course section, then only you can generate a perception
on WhatsApp chat. You can connect with me regularly. तो बेहद जरूरी है कि ये कंप्लीट कोर्स सेक्शन को आप जाकर क्या कर सकें, चैट कर सकें और आप मेरे साथ सेशंस का हिस्सा बन सकें. अगर आप मेरे ऑनगोइंग बैच कोर्सेज की बात करेंगे तो मेरे जो ऑनगोइंग बैच कोर्सेज है वो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आते हैं. बेहद इंपॉर्टेंट बैच कोर्सेज जो हैं वो अभी लाइव हैं, तो प्रयास करिए कि आप इन बैचेस का हिस्सा हो सकें. और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 21 मई को टारगेट कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के चलते हुए, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 2 बैचेस जो है वो अभी ऑनबोर्डेड हैं और दोनों ही बायलैंग्वेज हैं. तो जो भाषा वाली एक समस्या आती है कि कुलदीप सर जो है वो अंग्रेजी में उनका कंटेंट रहता है, उनका डिलीवरेंस जो है अंग्रेजी में रहता है, आप हिंदी मीडियम छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए 1:30 बजे 1:35 पर यूनिट 1 पर एक कोर्स है जिसका कंटेंट जो है, एक्सप्लेनेशन जो है बायलैंग्वेज है. इसी तरह रात 8 बजे आप मेरे साथ यूनिट 2 पर कनेक्ट कर सकते हैं. इसका भी जो कंटेंट है, इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है, वह दोनों ही भाषाओं में आपको नजर आता है. हिंदी में भी नजर आता है, इंग्लिश में भी नजर आता है. इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राओं के कंटेक्स्ट में शाम 5 बजे मध्य प्रदेश जीके का बैच चल रहा है. आप उसका इंपॉर्टेंस इस टेस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं. जो छात्र छात्राएं हमारे साथ रेगुलरली उस क्लास का हिस्सा होते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज है. एग्जैक्टली 2 इंपॉर्टेंट बैच. तो इसी के साथ मैं मेरे सेशन की शुरुआत करूंगा, मैं मेरे टेस्ट की शुरुआत करूंगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी क्लासेस के रूल्स रेगुलेशन से चित परिचित होंगे. कोई बात नहीं. वंदना जी, आपको नमस्कार. सभी को गुड इवनिंग. सभी को नमस्कार. सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें. और इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. वेरी गुड इवनिंग टू यू गाइस. बाण सागर बांध परियोजना किस नदी पर बन रही है या किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर, सोन नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर. विकल्प आपकी स्क्रीन पर है. सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं. बाण सागर डैम is having its location or is constructed on which among the following this that is river? ये जो बाण सागर डैम है या इनमें से किस नदी पर बना हुआ है? And the 64% people have opted for the right answer. That's really very good. ठीक है. 61% people have opted for the right answer. That's really very good. विद्याभूषण जी नमस्कार. हर्ष बर्मन जी नमस्कार. 60 क्वेश्चन है टोटल. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. जबलपुर के निकट भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? At which among the following river this that is Dhuandhar waterfall is having its location or is constructed? Tapti, Narmada, Chambal or Betwa. You are having polling and off for that particular river. आप उस नदी का चुनाव कर सकते हैं जिस नदी के बैंक पर, जिस नदी के किनारे पर, जिस नदी पर धुआंधार जलप्रपात जो है वह नजर आता है आपको. ठीक है. 95% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया. दैट्स वेरी गुड. 93% again. Coming to the next one, Paritoshi, very good evening to you. आपके सभी गुड मॉर्निंग के मैसेज का भी मेरे भाई यही नमस्कार कर लेता हूँ आपको. धन्यवाद आपका बहुत बहुत. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रीवा में, सागर में, भोपाल में, छतरपुर में. विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है यह इनमें से कहाँ लोकेटेड है. ओके. That's very good. चलिए ठीक है. That's very good. Coming to the next one, and the next question is सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है चित्रकूट को, अमरकंटक को, पचमढ़ी को, मानधाता को. विकल्प आपकी स्क्रीन पर है. आप चुनाव कर सकते हैं कि इनमें से किसको सतपुड़ा की रानी के नाम से कंसीडर किया जाता है. Which among the following is called as Queen of Satpura? Which among the following is called as Queen of Satpura? That's right. 96% people have opted for the right answer. Okay. 93% people have opted for the right answer. That's very good.
Coming to the next one, and the next question is मध्य भारत के पठार के पूर्व में रीवा पन्ना का पठार और रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक और पठार स्थित है, इसका नाम बताइए. Just try to hear me out over the question. The question is basically about the geographical location. In the Madhya Pradesh, there is that is a plateau of the Madhya Bharat or the Central India. In the east of the Central India plateau, there is a Riva Panna plateau. So basically, the question is about that particular plateau which is having its location in the west of Riva Panna plateau. दंडकारण्य का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विकल्प आपकी स्क्रीन पर है. आप चुनाव कर सकते हैं कि रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में इनमें से आपको क्या नजर आता है. Which among the following is having its location into the west of Riva Panna plateau? Sakshi ji, which among the following is having its location in west of the Riva Panna plateau? रीवा पन्ना प्लेट्यू के वेस्ट में इनमें से क्या लोकेटेड है? Okay, so 52% people have opted for the right answer. Heading forward to the next one, and the next question is उदय प्रशस्ति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है? उदयगिरी केवसा states about the Yasovarman, Samrat Ashok, Maharaja Bhoj or the Alauddin Khilji. You are having the poll and can offer the right answer. आपके पास पोल है, आप चुनाव कर सकते हैं. द अचीवमेंट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी लुक्ड आफ्टर फ्रॉम द उदयगिरी इंस्क्रिप्शंस. उदयगिरी की गुफाओं से इनमें से किसके बारे में जो है वो जानकारी एकत्रित करी जा सकती है कि किसकी उपलब्धियों को क्या किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है. ठीक है, दैट्स वेरी गुड. कोई बात नहीं रितेश जी, आपको नमस्कार. वेरी गुड इवनिंग टू यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पीपल्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर. 32% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. प्रसन्न रहे मेरे भाई, आप स्वस्थ रहें. जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था. वे किस क्षेत्र के शासक थे? विंध्य प्रदेश के, मालवा के, गढ़कटंगा के, बुंदेलखंड के. विकल्प आपकी स्क्रीन पर है और सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं. जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था. वे किस क्षेत्र के शासक थे? He was having association with which among the following place, or he was ruling out with which territory or with which terrain? And the 60% people have opted for the right answer. That's very good. I hope you guys were there into the batch by 1:35 p.m. and the very same we had discussed into that particular batch by the day. आज जब आप 1:35 के जो बैच चल रहा था उस बैच में अगर आप थे हमारे साथ यूनिट 1 के, तो वहां हमने इसको डिस्कस किया हुआ था. बिकॉज वी वर हैविंग डिस्कशन ओवर द बुंदेलखंड रीजन. हम क्षेत्रीय इतिहास पर चर्चा कर रहे थे और क्षेत्रीय इतिहास पर चर्चा करते हुए हमने बुंदेलखंड के इतिहास में राजा जुझार सिंह पर चर्चा करी थी. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी? औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से, बाबर से. विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं. द क्वीन ऑफ द गढ़कटंगा, Rani Durgavati, she had been defeated by which among the following Mughal emperor? The queen of Gढ़katanga, that is Rani Durgavati, had been defeated by which among the following Mughal emperor? And the 80% people, 76% people have opted for the right answer. That's really very good. 75%, okay. तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप मुझे सुन सकते हैं. शहीद स्मारक इनमें से कहां स्थित है? ओरछा में स्थित है, मुरैना में स्थित है, भिंड में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है. विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं. कि जो शहीद स्मारक है ये इनमें से कहां स्थित है? ये बड़ा कठिन क्वेश्चन था. सिर्फ 26% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव कर पाया. 25%. आपको थॉरोली क्लियर होना चाहिए कि जब शहीद स्मारक की बात करी जाती है तो शहीद स्मारक जो है वह इनमें से किस जिले में स्थित है. और 27% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है. बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा. जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, चेक करेंगे, क्वेश्चन को डालेंगे शहीद स्मारक इनमें से कहां है. कई साइट ऐसी हैं अमृता जी, कई साइट ऐसी हैं जिनमें ओरछा जो है वह आंसर दिया हुआ है. तो बस यही तो हमें समझना होता है.
यही तो हमें समझना होता है कि भाई गूगल जो है वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, इसलिए हमें कई सारी किताबों को एट द सेम टाइम क्या करना होगा, पढ़ना होगा। इसी के साथ मैं दैट्स द ओनली रीजन आई एम डिस्कसिंग हियर। यही कारण है कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जाकर आप में से कोई मुझसे पूछे कि भाई ये ओरछा वाला कॉन्सेप्ट सर देखो, हमने तो ओरछा दिखाई दिया, तो समझ लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी मीडियम के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि देखो आज सब कुछ हिंदी में चल रहा है, लग रहा है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों को कैसा लग रहा है? उन्हें तो अच्छा ही लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन टू द मध्य प्रदेश? गोंड, भील, बैगा, कोरकू मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, भील है, बैगा है, कोरकू है। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ट्राइब से लेकर आया हूं, प्रयास करिएगा कि चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, लगातार सेशन में बने रह सकें और लगातार यहां से चीजों को सीख सकें। दैट्स व्हाई 91% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which district in Madhya Pradesh have highest and lowest scheduled tribe population? इनमें से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है, जबलपुर, भिंड, धार, ग्वालियर, जिसमें हमें जनजाति, ये जो जनजाति है शेड्यूल ट्राइब जो है, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा नजर आती है और फिर सबसे कम नजर आती है? सर जबलपुर उज्जैन में, भिंड इंदौर से, धार भिंड से, ग्वालियर धार से। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश having highest as well as the lowest scheduled tribe population, अनुसूचित जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या इनमें से किस जिले में है और सबसे कम जनसंख्या इनमें से किस जिले में है? आपको उस विकल्प का चुनाव करना है। Okay, so 69% people have opted for the right answer. That's very good. अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, What is the name given to the Bhil who have converted to Islam religion? वो जो भील कम्युनिटी के लोग, भील जनजाति के लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, ऐसे लोगों को क्या कहा गया? टाडवी, कोरकू, टोला, फालिया। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। What is the name given to the Bhils who have converted to the Islam religion? That's very good. And the 58% people have opted for the right answer. That's really very good. निश्चित तौर पर जब आप इस सेशन का आज हिस्सा होने जा रहे हैं, पूरे 60 क्वेश्चंस को अगर आप लगाने जा रहे हैं, आप यकीन मानिएगा कि आप अच्छे खासे तौर पर जो कुछ मध्य प्रदेश अभी तक हमने पढ़ा हुआ है और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आप जनरेट कर सकते हैं। सर ये ऐसा भी कर सकते हैं क्या? बेटा ऐसा कोई भी कर सकता है। धर्म परिवर्तन जो है वो कोई भी कर सकता है। उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति की आस्था किसी भी धर्म में हो सकती है। अनुच्छेद नंबर 25 अपने पास है। भारतीय संविधान में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि आपके पास कंसाइंस का अधिकार है, आपके पास प्रोफेस का अधिकार है, आपके पास प्रैक्टिस का अधिकार है और आपके पास प्रोपगेशन का अधिकार है। तो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अभी भी ऐसा कर रहे हैं क्या? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। पीपल ऑफ विच ट्राइब हैव गुड नॉलेज रिलेटेड टू द मेडिसिन? इनमें से वह कौन सी जनजाति है जिस जनजाति के पास अच्छी खासी दवाइयों को लेकर, औषधियों को लेकर अच्छी खासी जानकारी है, जो माहिर है इसमें? गोंड, अगरिया, कोल, बैगा। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। वह कौन सी जनजाति है जिस जनजाति के पास अच्छी खासी नॉलेज है? किसको लेकर? बोले सर ये आपके मेडिसिन को लेकर। धैर्य रखिए थोड़ा सा, ठीक है।
इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर आपका बेसिकली बैगा ट्राइब है। बैगा जनजाति वो है जनजाति, अरे बेटा रुक जाओ, धैर्य रखो थोड़ा सा। बैगा जनजाति वो है जनजाति है जिस जनजाति के पास क्या है, वो लेसन मैरिशेस को लेकर अच्छी खासी जानकारी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गोल गधेड़ो एंड भगोरिया ट्रेडिशन इज प्रिवेलेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब? इनमें से वो कौन सी जनजाति है जिस जनजाति में गोल गधेड़ो और भगोरिया जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वह क्या करते हैं, प्रचलन में है? सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति, भील जनजाति, बैगा जनजाति। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। आप उस जनजाति का चुनाव कर सकते हैं जिसमें हमें गोल गधेड़ो और भगोरिया ट्रेडिशंस जो है, भगोरिया परंपराएं जो है नजर आती हैं। ठीक है, 72%, that's very good. Okay, 71% people have opted for the right answer. That's very, very good. नहीं, सहरिया और जो अगरिया जनजाति है अमृता जी, वो बेसिकली संबंधित है आपके किसके साथ? दे आर नॉट हैविंग वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस। बेसिकली दे आर हैविंग एसोसिएशन विद द एग्रीकल्चर और दिस, दैट इज द कल्टीवेशन। जो खेती में कटाई बुवाई होती है, कटाई जो होती है उसके साथ संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पीपल ऑफ विच ट्राइब आर द इनहैबिटेंट ऑफ पातालकोट इनटू द छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन सी वह जनजाति है जो आपको पातालकोट में नजर आती है, जो छिंदवाड़ा में नजर आती है? भारिया, भील, बैगा, अगरिया। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं कि यह जो ट्राइब है, यह जो जनजाति है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें कहाँ नजर आता है? इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें, माफ कीजिएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें आपकी छिंदवाड़ा में नजर आता है, पातालकोट में नजर आता है। That's why intelligent people you guys are. 91% people have opted for the right answer. Pinaz. नब्बे % लोगों ने सही आंसर का चुनाव किया है। जिसके पास पोल नहीं आया उसके कंटेक्स्ट में मैं माफी चाहूंगा। सही आंसर जो है वो भारिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। What is the percentage of SC and ST population into the मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्या है? 16.6 एंड और 15.6%, 15.6% और 21.1%, 17.6% और 22.1%, 23.1 और 14.6%। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। आप उस प्रतिशत का, उस परसेंटेज का चुनाव कर सकते हैं जो एससी और एसटी पॉपुलेशन का आपको मध्य प्रदेश में नजर आता है। That's very good. Okay. 83% people have opted for the right answer. That's very good. 82% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एट विच प्लेस द भगौरिया हाट इज ऑर्गेनाइज्ड? जबलपुर, छतरपुर, अलीराजपुर, झाबुआ। ये जो भगौरिया हाट है, यह इनमें से किस जगह से संबंधित है? विकल्प आपकी स्क्रीन पर। आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं कि भगौरिया हाट आपको इनमें से कहां नजर आती है। That's very good. अधिकांशतः त्योहारों के समय पे ऐसी चीजें, ऐसे जो हाट होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। इस वजह से चर्चा में बने रहते हैं। और फिर वो जो क्षेत्र है पूरा, वो संबंधित ही उसी से है। एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश हैव द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट एससी पॉपुलेशन? मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें हमें सबसे ज्यादा एससी और सबसे कम एससी पॉपुलेशन नजर आती है? जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, झाबुआ, ग्वालियर, धार। विकल्प आपकी स्क्रीन पर। सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा इनमें से किस जिले में नजर आती है? सबसे कम इनमें से किस जिले में नजर आती है? 82% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया। दैट्स वेरी गुड। 78%। ओके।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोहासुर इज द चीफ डाइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? सहरिया, अगरिया, कोल, बैगा। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो लोहासुर हैं, ये लोहासुर इनमें से किस जनजाति के साथ संबंधित हैं, किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? सिक्सटी 60% पीपल हैव ऑप्टेड फॉर द राइट आंसर। विकास जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वैसे होली निकल गई मेरे भाई अभी तो। लिटरल मीनिंग ऑफ गॉन्ड एंड द भील रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जब हम गॉन्ड जनजाति और भील जनजाति के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो उनके शाब्दिक अर्थ को सही तौर पर समझाता है? माउंटेन्स एंड द बो, रिवर एंड द हिल, फॉरेस्ट एंड द वो, माउंटेन एंड द फॉरेस्ट। विकल्प आपकी स्क्रीन पर, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। $55% people have opted for the right answer. That's very good. अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेम द मराठा रूलर who divided the Maratha Empire among 5 different territories? मराठा कन्फेडरेशन का जनरेशन करने वाले व्यक्ति का इनमें से क्या नाम है? मतलब उसने जो एम्पायर का बाइफर्केशन कर दिया, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलग अलग मराठाओं को दे दी, ऐसे पेशवा को हम किस नाम से जानते हैं? पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से जानते हैं, पेशवा बालाजी बाजीराव के नाम से जानते हैं, पेशवा बाजीराव तृतीय के नाम से जानते हैं, इनमें से किसी के नाम से नहीं जानते। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। Name the Maratha Peshwa or they name the Maratha ruler who divided the Maratha Empire among the 5 different territories. Sonam, very good evening to you. Very good evening to all the people, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार। %38% people have opted for the right answer. Coming to the next one, even we were having discussion over this by I guess yesterday only. जब हम कल यूनिट 2 में थे और जब यूनिट 2 में हम 1761 को डिस्कस कर रहे थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को डिस्कस कर रहे थे, तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जाकर मैंने कहा कि बाजीराव प्रथम ने क्या कर दिया। बोले सर अपना जो उनका क्षेत्र था उस क्षेत्र का विभाजन जो है वो सिंधियाज में, होलकर्स में, पेशवाज में, भोंसलेज में और आपके जो एक और बचे हैं कौन से गायकवाड़ में, इनमें कर दिया। तो किसने कर दिया? बोले सर पेशवा बाजीराव प्रथम ने कर दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। होलकर डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय माधवराव होलकर, मल्हार राव होलकर, मालेराव होलकर, नन ऑफ द अबव। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं कि इनमें से वह कौन से होलकर राजा हैं जिन्हें होलकर वंश के संस्थापक के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। Which among the following can be considered as the founder of the Malharganj or the Holkar dynasty? That's very good. So 81% people have opted for the right answer. That's very good. Coming to the next one, and the next question is ग्रेट वॉरियर तात्या टोपे वॉज बिट्रेड बाय। तात्या टोपे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे को धोखा देने वाले व्यक्ति, गद्दारी करने वाले व्यक्ति, मान सिंह, जीत सिंह, राजा भोज, करण सिंह। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं कि इनमें से वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तात्या टोपे को धोखा दिया था, जिनके धोखे की वजह से तात्या टोपे जो हैं उन्हें क्या किया गया? वो सर अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया और मिनी शिमला में फांसी दे दी गई। 87% छात्र छात्राओं के द्वारा सही आंसर का चुनाव किया है। दैट्स व्हाई गुड। ठीक है, बिल्कुल मुस्कान जी, ऐसा ही था।
धोखा सबको याद रहता है, लगता है। अरे मेरे भाई, धोखा खाने से ना आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर जाता है। हालांकि कुछ लोगों का क्या होता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन अधिकांशतर लोगों का धोखा खाने से क्या होता है, दिमाग चलने लग जाता है। तो धोखा खाना भी ठीक ठाक है, कभी कभार खा लेना चाहिए। और अगर जीवन में ठीक ठाक विकास होना है तो दो चार धोखे मिल जाने चाहिए, जरूरी है, दो चार धोखे तो ठीक ठाक है। और अगर इससे भी अच्छा ये है कि अगर आप अपने धोखे खुद नहीं खाना चाहते धोखे, अगर आप खुद धोखा नहीं खाना चाहते तो आप दूसरों के धोखे से सीख लीजिए। लेकिन बेचारा जो धोखा खाया होता है वो खुद इतने गम में होता है कि वो क्या किसी को सिखाएगा। तो वो तो सिर्फ पिक्चर्स में ही नजर आता है कि मेरा इंतकाम या तेरा इंतकाम, ऐसा कुछ जो भी है वो देखेगा। शीतल जी पूछ रही हैं कैसे मिलता है धोखा। बेटा बस कुछ नहीं करना होता, अच्छा पढ़ना होता है। अच्छा पढ़ने के बाद आप भी धोखा दे सकते हैं किसी को, जरूरी नहीं है कि धोखा खाया ही जाए, आप धोखा दे भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धोखा खाना ही क्यों है, दो चार धोखे दे दो तो भी ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, झंडा सत्याग्रह ऑफ 1923 इन मध्य प्रदेश वाज स्टार्टेड एट अ। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह जो है 1923 में कहां से स्टार्ट किया गया। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। मुझे तो खाना है, बहुत इच्छा है। अच्छा, भगवान ना करे बेटा आपको 8-10 धोखे मिले, 3-4 से ही काम चल जाए। 92% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अभी अब इच्छा ही उसकी इतनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज अज्यूम्ड टू बी द रिवॉल्ट ऑफ। जब हम मध्य प्रदेश के सबसे पहले विद्रोह की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला विद्रोह जो है इनमें से किसके साथ संबंधित है। अप्पाजी भोसले के साथ, देवनाथ सिंह के साथ, दिल्हा शाह के साथ। दिलसान शाह कर लीजिएगा, इनमें से किसी के साथ नहीं। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पहला विद्रोह इनमें से किसके साथ संबंधित है। 91% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप अगर चाहें तो आप मुझे कमेंट कर, गलत है मेरे भाई रितेश, आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो अप्पाजी भोसले के साथ एग्जैक्टली ये 1818 में रहा, और 1818 में इसे हम किस नाम से कंसीडर करते हैं, तो इसे हम बैटल ऑफ मुल्ताई के नाम से कंसीडर करते हैं। कि मुल्ताई का जो युद्ध है वह मुल्ताई का युद्ध क्या है, बोले सर मध्य प्रदेश का सबसे पहला विद्रोही कंसीडर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेम द लास्ट किंग ऑफ द सिंधिया डायनेस्टी। सिंधिया वंश के आखिरी राजा का नाम का चुनाव करना है। जनकौजी राव, दौलत राव, जॉर्ज जीवाजी राव, माधव राव। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, महाकौशल नहीं, आपका 1800 कुछ जो भी आपने कमेंट किया था वो गलत था। और महाकौशल क्यों आपको याद रख रहे हैं, आप सीधा याद रखिए कि मुल्ताई से था, बैतूल से था। 60% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया। दैट्स वेरी गुड। 57%, ओके, दैट्स वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, when was the Chandrasekhar Azad born in Bhavra, that is Alirajpur, into the Madhya Pradesh? 23rd July 1905, 23rd May 1907, 23rd July 1906, none of the above. You are having poll, can opt for the right answer कि ये जो चंद्रशेखर आजाद जी थे, चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा अलीराजपुर में इनमें से कब नजर आता है, किस डेट में हुआ, किस ईयर में हुआ। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। 57% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। ठीक है, 56%, दैट्स वेरी गुड।
Coming to the next one, and the next question is, Moti Masjid and Moti Mahal into the Bhopal was built by Qadsiya Begum, Sikandar Jahan Begum, Hamidullah Khan. इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो मोती मस्जिद है, ये जो मोती महल है भोपाल में, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो निर्माण है, इनमें से किसके द्वारा किया गया है, मतलब करवाया गया है। ठीक है, 62% people have opted for the right answer. That's very good. Okay, that's very good. So 56% people have opted for the right answer. Coming to the next one, and the next question is, first woman ruler of Bhopal state was Sultan Jahan Begum, Qadsiya Begum, Sikandar Jahan Begum, Shah Jahan Begum. विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि जब भोपाल राज्य में बेगमों का शासन स्टार्ट हुआ तो इनमें से वह कौन सी बेगम है जिन्होंने सबसे पहले भोपाल राज्य पर शासन किया। ठीक है, 70% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। दैट्स वेरी गुड। %69 okay. अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भोपाल स्टेट वाज फाउंडेड बाय, भोपाल राज्य का जो फाउंडेशन है वो इनमें से किसके माध्यम से किया गया। दोस्त मोहम्मद खान, हमीदुल्लाह खान, शाहजहां बेगम, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपकी स्क्रीन पर, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो भोपाल राज्य है, भोपाल स्टेट है, इसका फाउंडेशन इनमें से किस व्यक्ति के माध्यम से किया गया है। 87% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। ठीक है, that's very good. Okay, 86% people have opted for the right answer. Coming to the next one, and the next question is, in Malwa Plateau region the hottest month of the year is March, April, May, June. विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि मालवा के पठार में सबसे गर्म महीना जो है वो इनमें से कौन सा है। मार्च है, अप्रैल है, मई है या फिर जून है। दैट्स वेरी गुड। और मैंने आपसे कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन वी वर हैविंग डिस्कशन ओवर द क्लाइमेट। दूसरा, जो छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश में क्लाइमेट पढ़ना चाहते हैं, आज मैंने शाम 5 बजे क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश पर क्लास जो है वो डिलीवर किया था। आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर मध्य प्रदेश जीके के बैच में आज की क्लास में एग्जैक्टली क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश को देख सकते हैं। कल भी आप मेरे साथ क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश पर कनेक्ट कर सकते हैं। वहां जाकर बिल्कुल हमने ऐसी चर्चा करी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द प्लेस रिसीविंग रेनफॉल इन मध्य प्रदेश इज द पचमढ़ी। The place receiving maximum rainfall into the Madhya Pradesh is Pachmari, which receives an average rainfall of 300 centimeter, 199 centimeter, 100 centimeter, 400 centimeter. You are having poll and cannot for the right answer. औसतन वर्षा पचमढ़ी में इनमें से कितनी होती है। 71% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। 70% छात्र छात्राओं ने। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ओके, 70% people have opted for the right answer. That's very good. अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आफरीन कनेक्ट कर रही है क्या हमारे साथ? आफरीन जी, अपनी मित्र की मदद करिएगा, किसी और से मिले इससे अच्छा है कि आप ही 3-4 बार दे दीजिएगा। एक ही दिन में दे देना 3-4 बार, बेचारी किसी और से मिलेगा तो झेल नहीं पाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप ही 3-4 बार दे दीजिएगा। ठीक है, ओके। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। रिवर हिरन, टिंडोनी, वारना आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, ताप्ती, नर्मदा, वेतवा। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो हिरन है, ये जो टिंडोनी है, वारना है, ये इसमें इनमें से किस नदी के राइट बैंक सहायक नदियां हैं।
दाएं ओर जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह आपसे पूछी गई हैं कि किस नदी की दाएं ओर बसी हुई सहायक नदियां हैं। 77% छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रिवर बनास एंड द पार्वती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर सोन, ताप्ती, चंबल, नर्मदा। आपसे कहा गया है कि ये जो बनास है, ये जो पार्वती नदी है, यह इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप सही चुनाव कर सकते हैं, सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं कि इस नदी की सहायक नदी जो है वह बनास और पार्वती है। 72% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। दैट्स वेरी गुड। 70% अगेन। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी गुड। ये भी ठीक है। अभी वैसे बेटा पटवारी का पेपर है ना तुम्हारा, शीतल, तो पटवारी के पेपर में भी बहुत सारे धोखे मिलते हैं बेटा। तो तुम जैसे ही पटवारी, वैसे तो मैं चाहूंगा कि पटवारी का पेपर तुम्हारा अच्छा जाना चाहिए और मेरी शुभेच्छाएं ऐसी हैं पूरी कि आपका पटवारी का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा रहे। ठीक है, तो पहले ना एक काम करो, तुम धोखा खाने की तैयारी करो बेटा 2-4 साल, फिर उसके बाद खाना धोखा। अगले क्वेश्चन की ओर। बोले धोखा खाने की तैयारी नहीं की अभी मैंने। बेतवा रिवर फ्लोज इन मध्य प्रदेश एंड विच अदर स्टेट। जो बेतवा नदी है वह मध्य प्रदेश में और किस दूसरे राज्य में बहती है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। 87%। बेटा अगले साल रिजोल्यूशन पूछूंगा ना कि रिजोल्यूशन क्या लिया, बोले सर अभी मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, अब मैं ना अब किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। 3-4 बार इसी साल में अकेला अकेला महसूस होने लगा। तो ऐसे रिजोल्यूशन आते हैं फिर साल के लास्ट में जाकर, और मैं बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसे रिजोल्यूशन सुने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। विच रिवर इज कॉल्ड एज गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। इनमें से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अमृता जी। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि यह वही रिवर है मध्य प्रदेश की जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 81% people have opted for the right answer. That's very good. 79%। अरे मेहताब जी अब रोक दीजिए मेरे भाई, बहुत हो गया है। ज्यादा शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता चले कि अभी 2023 धोखा दे जाए। अगले क्वेश्चन की ओर। अभी 2023 में वैसे भी बहुत सारी नौकरियां हैं, तो नौकरी वर्ष है, नौकरी वर्ष में धोखों पर बात नहीं करो, सफलताओं पर बात करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छिपरा रिवर मर्ज इन दी सोन, चंबल, नर्मदा और केन। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि ये जो सिपरा है या छिपरा है, यह इनमें से किस नदी में जाकर क्या कर जाती है, समाहित हो जाती है, मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अमृता जी। 83% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। दैट्स वेरी गुड। वैसे आप बहुत सारे छात्र छात्राओं के बारे में जानते ही होंगे निश्चित तौर पर कि ये जो छात्र छात्राएं हैं इन्होंने 2021 का मेंस लिख रहे हैं, और इसी सीरीज में मैं आपको एक और नाम बता देता हूं। अमृता पांडे जी हमारे साथ जो कनेक्ट कर रही हैं, यह उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करती हैं और यह 2021 का मेंस लिख रही हैं। बाकी अगर मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा अभी, तो आपको अच्छा लगेगा इस स्कोर कार्ड को देखकर। आप समझ सकते हैं कि जो इंटेलेक्ट होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वह हर जगह अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वो कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं। जिनके पास टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट होता है, तो उनका नेचुरल टैलेंट जो होता है वो किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता। आप अगर लगातार उस टैलेंट पर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाते हैं।
तो ऐसे छात्र छात्राओं से सीखा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, Which among the following crop is an example of जायद crop? जूट, वाटरमेलन, कॉटन, पल्सेस। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। आप चुनाव कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी फसल है, कौन सी क्रॉप है जो जायद क्रॉप का उदाहरण है। 66% छात्र छात्राओं ने, 65% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। बेटा फसल जो होती हैं सीजन 3 प्रकार के होते हैं। एक रबी सीजन होता है, एक खरीफ सीजन होता है और एक जायद सीजन होता है। तो जायद फसलें जो होती हैं उसमें ये आपको ये जो नजर आ रहा है इस प्रकार की फसलें होती हैं। एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एक्सक्लूसिव कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ मध्य प्रदेश कुरकू खामला विलेज इज इन। आपके मध्य प्रदेश में कॉफी प्रोड्यूस होती है, कुरकू खामला विलेज से होती है। सवाल यह है कि यह कुरकू खामला विलेज जो है, गांव जो है, मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? धार जिले में, बैतूल जिले में, रतलाम जिले में, पन्ना जिले में। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप उस जिले का चुनाव कर सकते हैं। पैंसठ परसेंट छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया। दैट्स वेरी गुड। 67%, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। 67% people have opted for the right answer. Okay, okay, that's very good. अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, sorry, which among the following is the highest cotton producing district of Madhya Pradesh with a share of 34.8% into the state? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो कॉटन प्रोडक्शन में, अब सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन हमें इस जिले से नजर आता है। तकरीबन राज्य के कॉटन प्रोडक्शन में यह 35% क्या है, कंट्रीब्यूट करता है। खरगोन, विकल्प दमोह, देवास। विकल्प आपकी स्क्रीन पर, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, 73% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। दैट्स वेरी गुड। 75%। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, when the organic farming policy was implemented into the Madhya Pradesh? 2 July 2011, 2 July 2011, 2 October 2011, 10 May 2010, 2 June 2010। मध्य प्रदेश में ये जो जैविक खेती है, जैविक फार्मिंग का एक जो नीति आई, वह किस वर्ष में आई, किस तारीख में आई? विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश जैविक खेती अधिनियम जो है या नीति जो है वो कब आई है? और 18% छात्र छात्राएं जो है इन्होंने सही आंसर का चुनाव किया है। 18% पीपल हैव ऑप्टेड। अच्छा, तुम लोग इसलिए जा रहे हो, मैं समझ गया। आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, गलत टेम्पो में सवार हो आज। I can completely understand that the village upliftment was the objective or it was the dream of the मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन हर चीज मोहनदास करमचंद गांधी जी से जोड़कर नहीं देखी जाती, ये आपको समझना है। मुझे बाद में समझ आया कि तुम लोगों ने 60-58% में क्यों चुनाव किया है। Heading forward to the next one. Madhya Pradesh is divided into how many agroclimatic zones? Exactly, मनोरमा जी। 10, 11, 12, 13। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वह कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बटा हुआ है। 96% लोगों ने सही आंसर का चुनाव किया है। 94%, that's very good. Okay, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
Which among the following was made on Chambal River as the first dam? इनमें से कौन सा वह डैम है जो चंबल नदी पर सबसे पहले बनाया गया? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। आप इनमें से उस डैम का चुनाव कर सकते हैं, उस बांध का चुनाव कर सकते हैं जो चंबल नदी पर सबसे पहले बनाया गया। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। 67%, 68%, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which among the following district of Madhya Pradesh is benefited from the Bainganga Canal? जो बैनगंगा रिवर है, उस बैनगंगा नदी पर एक कैनाल, नहरें बनाई गई हैं। तो बैनगंगा नहरों से इनमें से कौन सा जिला जो है वह सिंचाई की जाती है, सबसे ज्यादा क्या है बोले लाभान्वित हुआ है? बालाघाट, मुरैना, धार, इंदौर। विकल्प आपकी स्क्रीन पर, आप उस जिले का चुनाव कर सकते हैं। वह जिला जो बैनगंगा कैनाल से, बैनगंगा रिवर से क्या है बोले सर बेनिफिटेड है, लाभान्वित है। 84%. That's very good. Although I was expecting that you will be opting the right answer with almost 100% accuracy this time. हालांकि मैं ऐसा लेकर चल रहा था, ऐसा मानकर चल रहा था कि आप जो चुनाव करेंगे तकरीबन 90-95% एक्यूरेसी के साथ चुनाव करेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो निश्चित तौर पर जो है वो आपके आंसर्स जो है वो पूरी तरह से सही हो सकता था। और जिन छात्र छात्राओं ने मुरैना लगाया है, जिन छात्र छात्राओं ने धार लगाया है, जिन छात्र छात्राओं ने इंदौर लगाया है, बेटा तीनों ही संभव नहीं है। सिर्फ मुरैना क्यों, धार और इंदौर भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप बेनगंगा रिवर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया है, और मध्य प्रदेश में जो ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये जो वेनगंगा नदी है ये साउथवर्ड जा रही है। अगर आप मुरैना की बात करेंगे नॉर्थवर्ड है, धार की बात करेंगे वेस्ट में आ रहा है, इंदौर की बात करेंगे साउथ वेस्ट में आ रहा है। आप चुनाव नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा क्वेश्चन पर सोचने का भी प्रयास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेक श्योर कि आप सही आंसर का चुनाव कर सके। एग्जैक्टली आंसू। Which among the following district of Madhya Pradesh has the highest sheep population? इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जिसमें भीड़ जनसंख्या जो है, भीड़ों की जनसंख्या जो है वह सबसे ज्यादा नजर आती है? टीकमगढ़, बैतूल, भोपाल, उज्जैन। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। Okay, so 59% people have opted for the right answer. That's very good. Just try to hear me out over the question right now. 58% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है, और मुझे बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अरे विशाल जी, क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इन 5 ऑप्शंस में से वो है कौन सा, पोल के माध्यम से चुनाव करना है। इन 5 जिलों में से वह कौन सा जिला है जहां पर भीड़ों की संख्या जो है वह सबसे ज्यादा नजर आती है? 5 ऑप्शन आपके पास है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर द राइट आंसर। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप हमेशा यह समझ सकते हैं कि कभी भी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर होते हैं, एग्जाम जो होता है वह 4 ऑप्शंस का खेल होता है। वह कभी भी आपके ज्ञान चक्षुओं पर निर्धारित नहीं करता, वह सिर्फ चक्षुओं पर निर्धारित करता है। यहाँ पर शिवपुरी का कोई ऑप्शन नहीं था, हमें ज्ञान चक्षुओं का इस्तेमाल नहीं करना था, हमें शिवपुरी नहीं ढूंढना था। शिवपुरी के बाद जाकर दूसरा वह जिला जिसमें भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा नजर आती है, तो वह टीकमगढ़ है। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल द पीपल्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर? यू गाइस कैन लेट मी नो। That's very good. So coming to the next one, and the next question is after Arunachal Pradesh, अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। मध्य प्रदेश इनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, इनमें से किसी एक का। और फिर उसके बाद जाकर दूसरे नंबर पर उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश है। बताइए, राइस के उत्पादन में, वीट के उत्पादन में, बैम्बू के उत्पादन में, कॉटन के उत्पादन में,
विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, सही ऑप्शन का आप चुनाव कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द सेकंड लार्जेस्ट, द मध्य प्रदेश। अब सवाल ये है कि इनमें से किसका। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो 57% पीपल हैव ऑप्टेड फॉर द राइट आंसर। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। 56% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। 54%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेंच टाइगर रिजर्व। धान का कटोरा मेरे भाई, अभी इसको कहा जाता है आपके छत्तीसगढ़ को, और नीचे चले जाओ कि आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व हैज इज इन होशंगाबाद एंड द बैतूल एंड द छिंदवाड़ा, सियोनी एंड द छिंदवाड़ा, सियोनी एंड द मंडला। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो आपका पेंच नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क इनमें से हमें किन 2 जिलों से संबंधित नजर आता है। गुड इवनिंग हरवंश जी, very good evening to you, very good evening to every single student, those who are connecting। आपको भी नमस्कार और सभी को नमस्कार। सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इनमें से किन जिलों के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, in which side of Narmada river Satpura tiger reserve is having its location। नर्मदा की साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ये जो आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसकी लोकेशन कहाँ है। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। Satpura Tiger Reserve is having its location into the south, into the north, into the east or the west of this Narmada river। ठीक है, 73% people have opted for the 68%। okay, that's very good। 69% people have opted for the right answer। okay, coming to the next one, and the next question is in which one of the national park मोगली लैंड was made। इनमें से वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड जो है वह जाना जाता है, संबंधित है। पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संचय नेशनल पार्क। विकल्प आपकी स्क्रीन पर, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो राष्ट्रीय उद्यान मोगली लैंड जिससे संबंधित है। 78% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। दैट्स वेरी गुड। 74%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। दमोह, खंडवा, रतलाम, धार। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इनमें से किस जिले में सिचुएटेड है, किस जिले से संबंधित है। और 57% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। 53% छात्र छात्राओं ने, दैट्स वेरी गुड। 50%। ठीक है, 49%, दैट्स वेरी गुड। 47। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फोसिल नेशनल पार्क मंडला is situated between Kanha and the Panna National Park, Pench and the Bandhavgarh National Park, Pench and the Panna National Park, Bandhavgarh and the Kanha National Park। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप चुनाव कर सकते हैं कि जो फोसिल नेशनल पार्क है जो मंडला में है वह इनमें से किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। 42% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। 40%। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। 39% ओनली।
आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या ऐसी दिक्कत थी, क्यों आपका आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विकल्प आपकी स्क्रीन पर, आप चुनाव कर सकते हैं कि सबसे छोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनमें से कौन सा है, और 80% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है। 82%, ठीक है। ओके Devans, only 8 questions are left. Coming to the next one. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, optical fiber factory into the Mandideep of Raisen district was established with the help of अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान। विकल्प आपकी स्क्रीन पर, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है मंडीदीप में, रायसेन में, यह इनमें से किसकी मदद से एस्टैब्लिश करी गई है। 59% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है, दैट्स वेरी गुड। 57%, ठीक है। ओके, दैट्स वेरी गुड। Coming to the next one, and the next question is, who was the founder of Satna Cement Factory? Satna Cement Factory के जो फाउंडर हैं इनमें से कौन है? अल्ट्राटेक, बिरला कॉर्पोरेशन, जेपी सीमेंट, एसीसी सीमेंट। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। साठ %, ठीक है। मेहताब जी, फिर तो दिक्कत होती होगी, पॉल्यूशन की समस्या होती है क्या? मास्क वास्क लगाकर निकला करो मेरे भाई, सुरक्षित रहोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैसे मालूम है जिब्राल्टर जो है मेरी छत से दिखाई देता है, और जिब्राल्टर जितने ग्वालियर में रहते हैं ना उन सबकी छत से दिखाई देता है। जितने लोग ग्वालियर में रहते होंगे ना, जिब्राल्टर उन सबकी छत से दिखाई देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ मध्य प्रदेश इज इन इंदौर, भोपाल, भोजपुर, उज्जैन। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है मध्य प्रदेश का, इनमें से आपको कहां नजर आता है। 69% people have opted for the right answer, that's very good. ठीक है, okay, 70%, that's very good. That's really very good, Varun. Coming to the next one. ठीक है, Which one is the first cement factory into the मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सबसे पहला सीमेंट कारखाना, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, बामौर सीमेंट फैक्ट्री, सतना सीमेंट फैक्ट्री। इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, आजकल ना आप सबकी पॉकेट में इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। भारत का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी जेब में है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आपके पास सब कुछ है। अगले क्वेश्चन की ओर, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद,
It was built in the year of 1975, 76, 1963, 64, 67, 68. None of these विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो सिक्योरिटी पेपर मिल है जो होशंगाबाद में है, यह इनमें से किस वर्ष में बना, किस वर्ष में एस्टैब्लिश किया गया? 47% people have opted for the right answer. 45%, that's very good. So we are just left with the 3 more questions, and then I will be sorry, summing up the session. We will be having discussion over the scorecard as well. Coming to the next one. First sugar mill in Madhya Pradesh was established at the Javra, Ratlam in the year of 1938, 1942, 1934, 1948. You are having poll can opt for that particular year, जिसमें जावरा सुगर मिल जो है, सुगर कारखाना, शक्कर कारखाना जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, और 61% छात्र छात्राओं ने सही आंसर का चुनाव किया है, 64% ठीक है। (62% okay. Coming to the next one. Malwa thermal power plant is situated in खंडवा, उमरिया, जबलपुर, सागर। विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, आप चुनाव कर सकते हैं कि ये जो मालवा थर्मल पावर प्लांट है यह इनमें से किस जिले में बसा हुआ है, किस जिले में लोकेटेड है। So we are heading towards the last question. मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा अभी जाकर आपको, जब आप स्कोर कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे ना, मैंने अभी अमृता जी के बारे में आपको कुछ बताया था, ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं हमारे साथ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेगुलरली हमारे साथ सेशंस का हिस्सा होते हैं वह ऐसे कई सारे छात्र छात्राओं से चित परिचित हैं, वह ऐसे कई सारे छात्रों के नाम जानते हैं जो 2021 का या तो जो मेंस है वह लिख रहे हैं, या जो 2020 का मेंस जो है वह क्लियर कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इस स्कोर कार्ड को देखेंगे ना, आपने बहुत सारे छात्र देखे होंगे जो स्कोर कार्ड का हिस्सा होते हैं। कई बार मैं कुछ क्वेश्चंस डेलिबरेटली जब गलत कर देता हूं तो उसके बाद वजूद भी उनके वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सही होते हैं। मतलब अगर मैंने 2 क्वेश्चंस गलत करे हैं तो उनके वो 2 क्वेश्चंस भी सही होते हैं कि हाँ सर जो आपने आंसर लगाया वही लगाया। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो मैं बहुत लंबे समय से ऑब्जर्वेशन लेकर चल रहा हूँ कि अमृता जी हैं, प्रियंका जी हैं, मनोरमा जी हैं, रितु जी हैं, इंजीनियर अमान हैं, शिवांश हैं, साक्षी जी हैं, गिरिराज जी हैं, मोहित जी हैं, आफरीन जी हैं, सभी बेहद ईमानदार हैं। इनमें से कोई भी वही छात्र नहीं है जो मतलब जो क्वेश्चन मैंने गलत करे इनके वो इन्होंने सही करे हो। मतलब जो मैंने आपको वहां डेलिबरेटली जाकर 1-2 टाइप वाले क्वेश्चंस को इधर से उधर किया, इनका सही नहीं था वो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी को ऑनेस्टी की पहचान कहा जाता है कि हाँ भाई हम ईमानदार हैं, और ऐसे ईमानदार लोग जो होते हैं वो निश्चित तौर पर जीवन में सफल होते हैं। अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर आपकी स्क्रीन पर। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड मध्य प्रदेश वाज क्रिएटेड एज द सेंट्रल प्रोविंस ऑन 2 November 1861, 2 June 1860, 15th of August 1856, none of the above। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश राज में सेंट्रल प्रोविंस जो है वह जब अस्तित्व में आया तो वह इनमें से कब अस्तित्व में आया? विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। 84% people have opted for the right answer. That's very good. 78% people have opted for the right answer. Okay. 76%, that's very good. And right now the scorecard will be there on your screen, and you guys can definitely put forward your hands together for Amrita. She is standing on the very first position with 59 out of the 62. I hope you guys are having the scorecard right now. Priyanka is standing on the second position with 54 marks. That's really very good. She is accompanied by Manorama, and on the next position there is Engineer Aman. Engineer Aman is accompanied by Sivans. That's really very good. Sivans is accompanied by Sakshi. Sakshi is accompanied by Giriraj. Giriraj is accompanied by Mohit. Mohit is accompanied by Afreen. Afreen is accompanied by Rituji, and that's really very good.
इस तरीके का स्कोर कार्ड जो होता है ना, बड़ा बड़ा आंखों को सुकून देता है कि हाँ भाई आपने कुछ अच्छा पढ़ा हुआ है, आपने अच्छे तौर पर जब सेशंस में लगातार कनेक्ट किया तो उसका एक आउटपुट जो है जब वो रिफ्लेक्ट होता है ना, तो संतुष्टि होती है कि हाँ आप अच्छा चल रहा है आपके साथ, आप एक अच्छी तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स रियली वेरी गुड। इसी प्रकार से आप सभी सेशंस का हिस्सा बने। आप में से किसी ने अभी एक सवाल पूछा कि सर अगला स्पेशल क्लास कब होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ बेटा कि लगातार आपके स्पेशल क्लासेस हो सके। थोड़ा सा कुछ कामों में इंडल्ज हूँ, कुछ चीजों में इंडल्ज हूँ। मेरे कुछ जो एक्चुअली उम्मीद है आप में से अधिकांश छात्र छात्राओं को मालूम होगा कि मेरा इसी महीने में बिहार पीसीएस में भी मेरे सेशंस आने वाले हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं अब जो है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर आगे बढ़ूंगा। उसमें भी मेरे सेशंस जो है वो रहेंगे, तो मैं उन पर काम कर रहा हूं अभी। तो इस वजह से कई बार आपके सेशंस जो है स्पेशल लेकिन इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि आपके जो सेशंस हैं वह नियमित हो सके। आप उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, कल जितने थे आज भी उतने ही हैं, कल भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूं। और मैं आपके प्रति उतना ही समर्पित हूं जितना कल था, जितना आज हूं और हमेशा रहूंगा। सो गुड नाइट टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, लगातार हमारे साथ कनेक्ट करते रहिए। यह मेरे बारे में है, दिस इज कुलदीप दुबे। These are mine subject on which you guys can connect up, and this is the Rafi code that is KD496 up, which you guys can ask your dear ones, loved ones to use this. बताएं शीतल जी, कुछ पूछना चाहती हैं आप, कुछ जानना चाहती हैं? किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना? जलवायु मतलब अभी मैं जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा कुछ कहना चाहती हैं? 5 हैं। अगर जलवायु है, क्लाइमेट है तो 5 हैं। आज ही पढ़ाया हुआ है मैंने, आज ही पढ़ाया हुआ है अमृता जी। और आज ही मैंने ये बताया हुआ था कि आज के ही सेशन में मैंने चर्चा करी हुई थी। और सिर्फ मैंने 5 पर चर्चा नहीं करी हुई थी, मैंने जो 3 हैं जो कॉपिंस के हिसाब से हैं, और आपके दूसरा ये जो AR सुब्रमण्यम के हिसाब से हैं, वो भी मैंने आपको बताए हुए थे। तो एक बार जाकर उसका PDF देख लीजिएगा जो शाम 5 बजे आया था। आप निश्चित तौर पर उससे क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजों को सीख सकते हैं। शीतल कुछ है बेटा जो आप पूछना चाहती हैं, बताएं। अपने हैंडीज फीचर का आप इस्तेमाल कर सकती हैं और आप बता सकती हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं बेटा। मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल बहुत फ्री हूँ आज मैं। सर हमारे मार्क्स, अच्छा ठीक है, तो आप सब भी मुझे अपने मार्क्स जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आशुतोष जी 46, शिवानी 39, ऋतिक 38, दिव्यांश 45। अच्छा ये था रीजन। शीतल 51, ठीक है। मुस्कान 45, पारितोष जी 51, पिनास 48, पूजा 39, विद्याधर 42, सोनाली 50, ठीक है। भारती 46, स्नेहा 31, ठीक है। पूनम 48, सत्यम मेरे भाई, आपका जो स्टैंडर्ड था एक समय पे मुझे बड़ा अच्छा नजर आता था। आज चीजें जो हैं, अगर आप सत्यम ही कनेक्ट कर रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ, और आप 36 नंबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आशु 44, साक्षी 39, अनुराधा 32, हर्ष 15, निधि 35, निशान 32। Is there anybody who wanted to let me know their marks as well? आप में से कोई भी छात्र छात्रा है जो मुझे अपने नंबर कमेंट करके बताना चाहता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वरुण जी 44, मतलब इतनी जल्दी आने के बाद 44 क्वेश्चन तुमने लगाया भी नहीं, 44 नंबर आ गए तुम्हारे, क्या बात है यार। ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि मैं 44 के बाद आया था सर? अच्छा 44 भी रैंक है, तो ठीक है फिर। 114 में से 44 भी रैंक है, अच्छा ठीक है। ये समझना होगा सबको कि मेरी नजरें जो है ना वो सब पर रहती हैं। ठीक है, आंसू 44, ओके। अरे मेरे भाई रैंक मत बताया करो, नंबर बताया करो। 114 15 स्टूडेंट कनेक्ट कर रहे हैं, मैं कैसे समझूंगा अभी कि आपके 59 नंबर हैं? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर। पासिंग मार्क्स कितने थे ये मत पूछो यार, ये तो अभी फेल हो जाओगे बहुत सारे लोग। 45 प्लस जो है वो पासिंग मार्क्स थे। 45 प्लस जो थे वो पासिंग मार्क्स थे। तो चूंकि आसान सा टेस्ट था, और फिर दूसरा सिस्टम ये है कि ऑलमोस्ट हम उस टेस्ट को लेकर चल रहे हैं जो मैं चीजें पढ़ाते हुए चला जा रहा हूं आपको।
हम हर उन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो हमने कहीं ना कहीं टेस्ट में वो आपको सारे क्वेश्चंस नजर आते हैं जो हमने डिस्कस करे हुए हैं। तो अब तो मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि हाँ भाई आपके 45 प्लस आने चाहिए। अगर आपके 45 प्लस आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर 45 प्लस नहीं आ रहे हैं तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि आप इनकंसिस्टेंट हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, और आप घर पर रिवीजन नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इन तीनों चीजों पर काम करना स्टार्ट करिए, आपके नंबर में सुधार हो जाएगा। इसी के साथ गुड नाइट टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए। कल आपकी क्लासेस जिस प्रकार से शेड्यूल्ड हैं, लाइंड अप